एक्सट्रीमली वेल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के कोर्स शेप कॉन्टेस्ट स्टार्टर्स 156 की इस प्रॉब्लम को, जिसका नाम है इवन नंबर स्टेट। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आई होप आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा। इसमें कहा जा रहा है कि वी विल गेट एन इंटीजर एरे ए विच विल बी कंटेनिंग एन इंटीजर्स and we have to make prefix sum array out of the given integer. And how we have to make this prefix sum array? We have to make this prefix sum array after rearranging the given elements of the given array in such a way that we will have maximum number of odd numbers in our prefix sum array. So we have to rearrange the array elements optimally. Now काफ़ी लोगों को आप में से पता होगा प्रीफिक्स सम एरे क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। सपोज दिस इज़ द एरे गिवन टू अस एंड वी हैव टू मेक प्रीफिक्स सम एरे आउट ऑफ इट। इससे हमें प्रीफिक्स सम एरे बनाना है। तो प्रीफिक्स सम एरे विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द गिवन एरे। सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कंटेन 4 एलिमेंट्स। द फर्स्ट एलिमेंट विल बी द सेम एज द गिवन एरे एलिमेंट, first element of the given array, that will be 2. For the second position, we will sum all the elements from starting till the point on which we have to place the element. तो इस पोजीशन के लिए हम 2 से यहाँ तक का सम कर लेंगे, 3 तक का, it will be 5. Then for the next position we have sum till this position, इसमें हम ऐड कर लेंगे 1. Then 5 plus 1 6 will be the next element for this prefix sum array, and 6 plus 4 10 will be the last element for this prefix sum array which we have created out of the given array. But इस केस में हमने कोई कंडीशन का यूज़ नहीं करा है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करा है कि ऑप्टिमली हमारा आंसर आए। अब हम सब पहले हमने समझा है कि प्रीफिक्स सम array क्या है। अब हम समझते हैं आगे हमें करना क्या है इसके साथ, प्रीफिक्स सम array के साथ। अब प्रीफिक्स सम एरे बनाने से पहले हमें एरे के एलिमेंट्स को रीअरेंज करना है कुछ इस तरह से कि वी कैन गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसका इंट्यूशन मुझे इस फैक्ट से आया कि इफ़ आई नीड एन ऑड नंबर, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू नीड 2 types of number, one even and one odd. Then only I will get odd. In all other cases, even plus even will give me even, and odd plus odd will also give me even. So there is only one case when I am getting an odd number, when I have an even number and odd number. Okay, I am going to use this fact in approaching this problem. Let me show you with an example that this is working. If I am taking an even number as 2 and other odd number as 7, then I will get 9, which is an odd number. And for two even numbers, if I am taking 4 and 6, I am getting 7 as a result, which is an even number. And here I am taking 2 odd numbers, suppose 13 and 11, I am getting an even number, that is 24. So there is only one case when I am getting odd number, that is I must have one even number and odd number. Okay, now let me take the first test case to explain you. I have this given array and I have to rearrange. So first element I am going to take in a rearranged array. I will take straight away an odd number that will directly increase my answer by 1. So currently I am having one odd number, and in prefix sum array I will get 1 as the first element, so I am increasing my answer by 1. So what should be the next number that I should take here? For getting other odd number in my prefix sum array, I should take an even number. Currently I have odd number as sum, and whatever I will place here I will add with this, and I will get the next number.
So definitely I have currently odd number. I would need an even number to get an odd number here. So let me take an even number from here. I have already taken 1 and now I am taking the even number 2. And odd number plus even number will give me an odd number, that will be 3. And as currently I am having 2 odd number in my prefix sum array, so I am increasing my answer by 1 and it will become 2. So again I have odd number. What should I take here? An even number. I have taken 1, 2, and now let me take 4. If I am taking 4, then 4 plus 3, 7. I'll get another odd number and I will increase my count by 1. It will become 3. I have taken this 4. अब मेरे पास 3 बचा है. I don't have any other choice. I have to take this. So odd number will give me even number 10. It is an even number, so I will not increase my count, and 3 will remain my final answer, which is correct. Alright. तो आपको यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिला होगा कि अगर हमारे पास एटलीस्ट एक ऑड नंबर है तो वो इवन नंबर्स के साथ मिलकर उनको भी इट विल मेक देम टू कंट्रीब्यूट इन आवर आंसर, एंड दैट कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू देयर काउंट. जितने भी इवन नंबर प्रेजेंट होंगे एक ऑड नंबर उनसे ऑड नंबर उतने ही ऑड नंबर जितने इवन नंबर है बना देगा हमारे फाइनल प्रीफिक्स सम एरे में. ये 2 इवन नंबर एक एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव दिस ऑड नंबर. अगर ये नहीं होता, अगर हमारे पास एक भी ऑड नंबर नहीं है गिवन एरे में, तो क्या हम इन इवन नंबर से ऑड नंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने काउंट कर लिया इन 2 वेरिएबल्स में, इवन्स एंड ऑड में, कि हमारे पास टोटल कितने इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं. अगर इवन ऑड नंबर्स 0 हैं तो इस टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, एंड आई विल स्ट्रेट अवे प्रिंट दिस 0. आई कैन नॉट गेट एनी ऑड नंबर इफ आई एम हैविंग ऑल द इवन नंबर्स इन माई गिवन एरे. और इस केस में भी मेरे पास सभी इवन नंबर्स हैं, hence I am getting 0 as my answer. Alright. इतना समझ में आ गया है कि अगर हमारे पास एक ऑड नंबर हो तो बाकी इवन नंबर भी कंट्रीब्यूट करेंगे फाइनल आंसर में, और कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे? जितना कि उनका काउंट होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन करेंगे. अब आगे की बात समझ लेते हैं कि इसके बाद बाकी अगर नंबर हुए इवन नंबर्स तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे. जितने भी इवन नंबर्स होंगे हमारे पास वो एज इट इज़ अपने आंसर में ऐड कर लेंगे. अब बाकी ऑड नंबर जो बचेंगे उनका क्या? वो भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट टेस्ट केस से. अब नेक्स्ट टेस्ट केस में भी हम पहले की तरह एक ऑड नंबर ले लेते हैं, देन इवन नंबर ले लेते हैं जितने भी हैं. 4 2 ही हैं हमारे पास, 3 ले लिया, 4 2 इवन नंबर से ले लिया. देन वी आर रिमेनिंग विद 1 7 and 3. चलिए प्रीफिक्स सम एरे बनाते हैं. यहाँ से आ गया 3 हमारे पास, देन 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 3 19. You will get one more observation from here that इतने पार्ट ने एक ऑड और बाकी इवन ने सेम नंबर ऑफ ऑड नंबर्स दे दिए हमें, और बाकी जितने भी ऑड नंबर थे वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर वी नीड टू कंज्यूम दैम इन पेयर्स. इन दोनों ने मिलकर एक ऑड दिया है हमें, बिकॉज ऑड प्लस ऑड विल गिव अस इवन, एंड दिस इवन विद द प्रीवियस ऑड विल गिव अस ऑड. ओके, ऑल राइट. तो जब हमारे पास एक भी ऑड नंबर होगा तभी हम कैलकुलेट करेंगे, और इस कैलकुलेशन में हम सीधे इवन्स हमने ऐड कर लिया है, जितने भी इवन नंबर्स थे उनको ऐड कर लिया, प्लस जितने भी इवन नंबर्स थे वो तो ऐड होंगे ही, प्लस देखिए इस केस में हमारे पास 3 ऑड नंबर थे. ये 3 मिलकर कंट्रीब्यूट कितना कर रहे थे? 2 कर रहे थे. तो अगर मैं
3/2 करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, पर ये कंट्रीब्यूट 2 कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ फॉर्मूला ऐसा बनाया कि 3 + 1 अगर मैं कर दूँ तो ये आंसर 2 देगा। तो अगर ऑड नंबर्स में प्रेजेंट हैं काउंट ऑफ ऑड can be even and odd, and this formula is working fine if they are present in odd that we have seen here. अगर इवन में होता, एक और ऑड नंबर होता, आगे ले लेते हैं 5, देन सम क्या होता 24, which is again an even number that will not contribute in our final answer anything, our answer will remain 4। तो इस केस में भी अगर हमारे पास अब कितने ऑड नंबर हो गए, 3 हो गया, ये 3 हो गए, 4 हो गया, काउंट अब 4 + 1/2 कर रहे हैं, 5/2, इंटीजर पार्ट तो 2 ही रहेगा, 2 ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस केस में भी, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करा है दैट विल वर्क विद बोथ इवन एंड ऑड काउंट ऑफ ऑड नंबर्स। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया ये प्रॉब्लम, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।